Everyone, welcome to physics classes. Now, today we are going to start the new chapter Force and Laws of Motion. So, let us now start with force. What is a force? A force is an external effort which may move a body at rest or stop a moving body or change the speed of a moving body or change the direction of a moving body or change the shape and size of a body. So this was all about the force. Now dear students, you just try to understand what are the effects of a force. In first example, you will see that a force can move a body at rest. Okay. Now look at the figure number 1. This car is at rest and a person is pushing the car. Means what? What he is doing to the car? The person is applying force on the car and we see that the car moves. Means this is the effect of force due to which the car is moving. Okay, so we can say that a force can move a body at rest. Now the second example, force can stop a moving body. Look at the figure number 2. A football is coming very fast. But what happens when a goalkeeper stops the ball? The goalkeeper is applying force on the ball to stop it. So we can say that force can stop a moving object, moving body. Number 3 is force can change the speed of a moving body. In case number 3 you will see effect number 3, force can change the speed of a moving body. Look at the figure number 3. When we apply brake on a moving bicycle, then what happens? The speed changes. The speed slows down. It is only due to the application of the force on the brake. Okay. Number 4, force can change the direction of a moving body. You can see figure number 4. A ball is coming towards the batsman. But what happens when the batsman strikes the ball and changes the direction of the ball? When he strikes the ball, then he applies force on the ball to change the direction of the ball. So this is the effect number 4. Force can change the direction of a moving body. Number 5, force can change the shape and size of a body. You can see this activity happens in the kitchen. Okay, ये जब रोटी बनता है घर में बच्चे, तो इस तरीके का तुम देखोगे कि बेलन से इसको जो है फोर्स हम जब लगाते हैं आटा के ऊपर में, तो ये जो है सो आगे फैलते चला जाता है, इसका शेप चेंज होते चला जाता है। तो इसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप और साइज सब चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमने देखा कि ये जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं इस प्रकार से काम करते हैं। फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। तो ये जो है इसको देखने और समझने का काम है। डे टू डे लाइफ में अपने बहुत सारे एग्जांपल्स तुम देखोगे जिसमें ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स तुम्हें जो है समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर आएंगे अब हम लोग। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है इसको पहले समझना जरूरी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स
which opposes the motion of an object over a surface. देखो बच्चे, a ball rolling on ground gradually slows down and comes to a stop due to force of friction. If we stop paddling a bicycle, it gradually slows down and comes to a stop due to force of friction. देखो पहला केस में तुम देखोगे कि जो फर्स्ट फिगर तुम देख रहे हो, इसमें एक लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड की तरफ इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये इसका मोशन जो है राइट साइड में है। तुम देखोगे यहाँ लिखा है मोशन, तो मोशन आगे है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इस ऑब्जेक्ट और सरफेस के कांटेक्ट में जो एक फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। इसका वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम है और ये इसलिए आगे जा रहा है। और यहाँ पे तुम देखो इन दोनों के बीच में जो है ये जो फोर्स हमें दिखाए हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, अब सेकंड फिगर देखोगे, ए बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड। देखो ये एक बॉल है जो जमीन पर रोल कर रहा है। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द बॉल कम्स टू रेस्ट। व्हाई डज इट कम टू रेस्ट? Try to understand. There is a force between ball and the ground, that is the contact force, and this force is opposing the motion of the ball, due to which the ball comes to rest. It is only due to the friction. In third figure you will see a person is paddling a bicycle. Then what will happen? If he stops paddling a bicycle, then it gradually slows down because the motion of cycle is being opposed by a force in contact between the tire and the road, that is the frictional force which opposes the motion and brings the bicycle to a stop. Okay, an object with uniform motion will continue to move with uniform motion if the force acting on it, that is pushing force and frictional force, are balanced. ये अपने मोशन में बना रहेगा जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये दो फोर्सेस जो अभी हमने बताए हैं। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द मूविंग बॉडी देन इट स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। जब फोर्स बैलेंस नहीं हो पाते हैं तब ऐसे केस में ये पॉसिबिलिटी बनता है। इफ द अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिमूव्ड देन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड इट हैड एक्वायर्ड टिल देन। ओके, तो ये जो फोर्सेस हैं अभी तुमने देखा, फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स तुमने देखा है। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो चलो बच्चे आज देखेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं। ठीक है, देखो, लुक एट द फिगर नंबर 1। देयर आर टू फोर्सेस and both the forces are applied on the box or the object in opposite direction. But what is the condition here? Both the forces are equal. Since both the forces are equal but they are acting in opposite direction, so we can say that these forces are balanced forces and the resultant value will be 0. The resultant value will be 0 and there will no motion in the object at all. So we can define the balanced force in this way. If two forces act on a body in opposite direction and if both the forces are equal, then the resultant force acting on the body is 0. Such forces are called unbalanced forces. Since the resultant force is 0, that is why there will be no motion at all in case of balanced forces. So we can say that balanced forces do not produce motion. Okay. Now come to learn the unbalanced forces. If two forces act on a body in opposite direction and if one force is greater than the other, then the resultant force is not equal to 0.
Such forces are called unbalanced forces. And unbalanced forces produce motion in the body. Let us now try to understand with the help of second figure. So look at the second figure very carefully, everybody. In this figure you will see that two forces are acting on the body, but they are in opposite direction, and the condition is what? F1 is greater than F2. So there will be motion in the body because one of the two forces is greater, and the body will move in the direction of greater force. So it will be moved towards left. Okay. So this was all about the balanced and unbalanced forces. एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल तुम देख सकते हो बैलेंस्ड फोर्सेस का और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। उस गेम का नाम है रोप पुलिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्सा कस्सी। ठीक है, तो ये जो है रस्सा कस्सी का जो खेल है उसमें तुम देखोगे कि रोप पुलिंग में होता यह है कि दो टीम होते हैं और दोनों टीम जो है फोर्स लगा करके रोप को पुल करने का कोशिश करते हैं। तो तुम देखोगे कि एक समय ऐसा आता है कि जब एक टीम जो है दूसरे को खींच लेता है, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स का केस उस समय बनेगा। जब तक रस्सी में कोई मूवमेंट नहीं है तब तक बैलेंस्ड फोर्सेस है, और जब एक टीम दूसरे को पुल करता है इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स वहाँ एक्ट कर रहा है, और इस वजह से दूसरा टीम जो है वो उसमें वो गिरने की कंडीशन में आ जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस का वो एक एग्जांपल है, और जब तक रस्सी या दोनों टीम अपने अपने जगह पे तैनात रहेगा तब तक तुम बता सकते हो कि दोनों साइड से जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस्ड फोर्सेस का वो भी एक एग्जांपल तुम समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया एंड मास देखेंगे आज हम लोग। देखो, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। बच्चे देखो, ए बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी जो रेस्ट में है वो उसी कंडीशन में रहने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और जो बॉडी मूव कर रहा है, जो बॉडी मोशन में है, दैट विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, द इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। देखो बच्चे, किस बॉडी पर कितना फोर्स लगा के आगे हम उसको जो है पुश कर रहे हैं या पुल करते हैं, इसी से उसका जो है पता चलता है। देखो यहाँ दो फिगर दिया हुआ है, एक बॉक्स छोटा है उसका मास कम है, दूसरा जो है बड़ा है उसका मास ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली तुम ये समझ सकते हो कि छोटे वाले में फोर्स कम लगेगा, क्योंकि इसके पास जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इसका जो मास बहुत कम है इसलिए इट हैज लेस इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरे के पास में इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू पुश द सेकेंड हेवी बॉक्स। सो वी कैन से दैट मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो ये जो इनर्शिया है बच्चे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। इफ ए स्ट्राइकर हिट्स ए pile of coins on a carom board, the lowest coin moves। बच्चे, कैरम बोर्ड तुम खेलते होगे या फिर तुम देखे होगे कि कैरम बोर्ड में जो कॉइन्स होते हैं उसको एक के ऊपर एक लगा के हम जो रखते हैं, और स्ट्राइकर से जब हिट करेंगे तो सबसे नीचे का जो कॉइन है वो बाहर निकल के आएगा, और क्योंकि ये जो फोर्स है उस कॉइन को, द फोर्स अप्लाइड ऑन द कॉइन set the coin into motion due to which it comes out, and all other coins have tendency of inertia of rest, so they will try to remain at rest, that is why they do not fall down, it is only due to inertia of rest। okay, तो इस तरीके का बहुत सारा केस तुम देख सकते हो।
तुम अब देखोगे जब कार में हम ट्रेवल करते हैं, ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो हम लोग जो है आगे की तरफ वी ट्राई टू टेंड टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। चूँकि हमारा अगला ऊपर का हिस्सा जो है देखो आगे गिरने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली we tend to fall backward because our feet in contact with the floor moves forward, but the upper part of the body continues to remain at rest due to inertia of rest. So हम लोग पीछे की तरफ मुड़ते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग बच्चे कि ये जो है तुम देखो इस फिगर में इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल। इस फिगर में पहला जो है एक ग्लास टम्बलर के ऊपर में कार्ड है, कार्ड के ऊपर में कॉइन है, और हम इसको जो फ्लिक करते हैं कार्ड को, अगर हम फ्लिक करेंगे तो ये कार्ड मोशन में आ जाता है, और ये कॉइन के पास चूँकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो वो अपने कंडीशन को, स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगा, और इस कारण से वो क्या होता है टम्बलर के अंदर यानी कि ग्लास के अंदर में वो चला जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, तो इनर्शिया जो है द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लॉ जो है बच्चे उसमें ये कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। और तुम इस तरीके से भी कह सकते हो कि ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। ओके, मतलब ये हुआ कि अब देखो कि ये बॉडी अगर कोई जैसे फुटबॉल को हम किक किए और फुटबॉल जो है सो ग्राउंड में मूव कर रहा है, तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से इसको जो है हमेशा मूव करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो हमेशा इसे जो है मोशन में रहना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, ये बॉडी जो है कुछ डिस्टेंस चलने के बाद रेस्ट में आता है, क्योंकि इसके ऊपर में एक फोर्स लगा हुआ है जो इसको कंपेल कर रहा है, इसको जो है इसके मोशन को अपोज कर रहा है। इसी कारण से ये चला आता है कहाँ? रेस्ट में। चलो बच्चे अब देखते हैं मोमेंटम क्या है, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, एंड मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P and P equal to m. M means mass and V means velocity. So we can say that momentum P equal to mv. P is momentum, m mass, V is the velocity of the body. तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि if a body at rest its velocity is 0 and so its momentum is also 0, क्योंकि ये जो है मास जो है और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो बॉडी जो है अगर रेस्ट में है तो इसका जो वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि मास कभी 0 नहीं हो सकता है, मास इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए बॉडी एट रेस्ट द वेलोसिटी इज 0 एंड सो इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो 0। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? अब देखो ये प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का, तो मास का ऐसा यूनिट kg होता है और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, तो इस मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो एक छोटा एग्जांपल तुम्हें दे रहे हैं बच्चे, जरा ध्यान से समझो। ए ट्रक मूविंग एट रेस्ट वेरी लो एट ए वेरी लो स्पीड कैन किल ए पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज ऑफ इट्स हेवी मास ऑफ द ट्रक। देखो बच्चे उसका स्पीड कम है, वेलोसिटी उसमें कम है, लेकिन चूंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है और मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसके पास जो मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, इस कारण से वो क्या कर सकता है? किल ए पर्सन, कैन किल ए पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। दूसरा देखो, ए बुलेट ऑफ स्मॉल मास व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन कैन किल ए पर्सन बिकॉज ऑफ द लार्ज वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब देखो यहाँ पर पहला केस में हम मास ज़्यादा था और वेलोसिटी कम लिए थे,
अब सेकेंड केस में तुम देखो इसका मास कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। सो द इम्पैक्ट ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को, एंड द नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। Until then, enjoy with physics and try to understand all such things about the force, effects of force, inertia. Find out some more examples to explain inertia of rest. Okay, so enjoy with physics. Thank you.